Now, before we do that, I would like to welcome Anshuman Khetan. I would like to welcome Anshuman Khetan. Can everybody please welcome Anshuman? Anshuman, are you here? Yes, I'm right here. Welcome, Anshuman. Hello, welcome, Mr. Anshuman. Welcome, Anshuman, sir. Welcome, Anshuman. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Welcome, Anshuman. Welcome, Anshuman. Welcome, sir. Thanks, Welcome. Welcome. Very nice, very nice. Okay, so Anshuman, why don't you share your story and share how has life been with you? And so I'll just hand over the mic to you rather than me saying something. First of all, Pranam, sir. Thank you for having me here today. And before I begin, I just want to give one disclaimer over here that sir, राहुल जी ना बहुत बार हमने जब कोर्स किया था तो सर हम लोगों को बोलते थे उसने 16,000 डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, उसने 800 करोड़ अपना टर्नओवर कर लिया, नींद में भी तुम लोग एफएमएस छाप सकते हो, ये एफएमएस तो बहुत छोटा गेम है, बड़ा गेम इसके बाद ही चालू होगा। और हम सोचते थे यार कितना पेलेगा ये आदमी, कितना मतलब भैया पतंग बहुत ऊंची चली गई है। And now when we attend the alumni sessions and now when we see the kind of results that we are getting, it is absolutely mind blowing. तो अगर सर 16,000 नहीं 16 लाख डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं ना, सर कभी झूठ नहीं बोलते हैं और सर कभी एग्जैजरेट नहीं करते हैं. Rather, he under promises and over delivers, and you all must know that he has about 8 or 10,000 alumni, and each and every person swears by what he says. So hi everyone, my name is Anshuman Khetan. And me and my brother did this course together, and we graduated in February 2019. We run schools in Noida and a sulfuric acid plant in Rampur, Uttar Pradesh. मेरे भाई स्कूल देखते हैं, मैं एसिड प्लांट संभालता हूं. So before I begin, I would like to apprise you that I have built a beautiful house on the lines of Sukh Vilas. Actually, राहुल जी से बहुत मतलब 10-15 दिन पहले ही मिला था मैं, बट बात नहीं कर पाया, तो सर क्विकली आपको अप्राइज कर देता हूं that I have built a beautiful house on the lines of Sukh Vilas in my factory in Rampur and completed it in a record time of 10 months. मैंने वहां भी सारे FMSs और चेकलिस्ट लगा दिए. I have also become सब 20,000 स्क्वायर फीट का है पूरा मेरा एरिया जहां मैंने बनाया है, और 10,500 स्क्वायर फीट का घर है with a servants quarter, garage and everything. 2.5 फीट जमीन नीचे थी और मैंने रिकॉर्ड टाइम 10 महीने में पूरा घर कंप्लीट कर दिया. It's so beautiful, I cannot tell you. So I have also become a life coach under the tutelage of Mr. Alan Cohen. I have also become an options writer and have made stocks a business taking professional coaching. All this मैंने अचीव किया कोरोना के पीरियड में, और वेदांत और मैंने पूरी अपनी जिंदगी कोरोना के पीरियड में चेंज कर ली, क्योंकि राहुल जी का फोन आया था 5वें दिन कोरोना चालू होने के बाद कि अंशुमन जल्दी से वेदांत को कॉल पे लो, मुझे एक बात करनी है तुम दोनों से. और सर ने मुझे फोन करके बोला कि वर्टिकली जाओ, हॉरिजॉन्टली मत जाओ. Don't think about the mayhem that is going on in the world. Concentrate on yourself. Go spiritually deep inside. This is the time. And I cannot tell you how much me and Vedant both have achieved since then, sir. एक चीज मैं आप लोगों के साथ सबको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि मैं जो भी बात कह रहा हूं 100% मेरे एक्सपीरियंस के हैं. And so everything I am saying, I have actually experienced and implemented over the last 45 months. Let me tell you about my life and what it was till April 19th, 2018, जब मैंने सर का वन डे कोर्स अटेंड किया था. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगा, चलेगा ना सबके लिए? हाँ सर? Yes, absolutely. चलेगा. जिंदगी बिल्कुल मेरी बर्बाद थी, and I took a 180-degree turn, but for that जो भी सर ने बोला हमने बिना अपना माइंड अप्लाई किए हुए कर लिया. हमने सर के सामने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर लिया कि सर आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कतरस हो गई थी मेरी जिंदगी कि I had no choice but to do the आत्मसमर्पण. I was running a chemical plant and I hated running the plant as it is a manufacturing unit and a mundane, uninteresting, boring business जिसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं. मैंने ये प्लांट चालू किया था 2003 में जब बिल्कुल बंद हो गया था. बहुत सक्सेस पाया इसको चला के और फिर मेरा पेट भर गया. पैसों की कभी कोई दिक्कत थी नहीं. एंड जस्ट नाउ व्हेन आई लुक बैक, मैं देखता हूं कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से स्टैग्नेट हो गई थी. एंड इट वाज जस्ट अ हेवीली कंजम्पटिव लाइफ.
आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ नेशनल लेवल गोल्फर। सिर्फ गोल्फ में मेरी रुचि थी और मैं सारा वक्त खाली हॉबीज में, पार्टिंग में, हॉलीडेइंग में बिताता था और मैं सारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ चुका था। 45 दिन में एक दिन के लिए अपने यूनिट में जाता था, वो भी कोशिश करता था कि मैं मॉर्निंग इवनिंग मार के आऊं। मेरी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट है जहां हम 120 टन सल्फ्यूरिक एसिड रोज का बनाते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब रोक नहीं सकते हैं इस प्लांट को। तो जब भी हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होता था तो हम कहते थे भैया इसको ना आप कट कर दो प्रोडक्शन। कैन यू इमेजिन द फिलॉसफी ऑफ रनिंग द प्लांट? मतलब वो मेरा मंदिर है और मैं कहता था आज घंटी मत बजाओ, क्योंकि हमारे पास वो बेल को ठीक करने का चीज नहीं है। और जब हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी केवल 5 दिन की होती थी तो हमने, जब हमारे पास टैंक ओवरफ्लो होता था हम तब भी अपना स्टोरेज कम कर देते थे कि भैया चला लो, जिस तरह से चलाना है चला लो। इस हद तक ये प्लांट जुगाड़ पे चल रही थी कि जब मैं बीसीआई का कोर्स लॉन्च करने के लिए गया तो मेरे जनरल मैनेजर साहब मेरे पास आए भरे सभा में, मतलब अपने 25 स्टाफ बैठ के बात कर रहे थे कैसे लॉन्च करना है। तो उन्होंने कहा सर ये सब करने की आपको जरूरत क्या है, जब मैं ये पूरी फैक्ट्री जुगाड़ पे चला ही रहा हूँ। Why do you want to get into this mess of now launching this? कौन है ये राहुल जैन और क्या है ये कोर्स और क्यों करा रहे हैं? मैं जुगाड़ पे चला तो रहा हूँ पूरी फैक्ट्री। हमारे यहाँ परचेज कोई भी कभी भी किसी भी समय कर सकता था, उसकी सैंक्शनिंग मैं करता था दिल्ली बैठ के। सारे इंडेंट्स ऑफिस के ड्रॉर में पड़े हुए रहते थे 2-2, 3-3 महीने तक और केवल इमरजेंसी आइटम परचेज की जाती थी। एचआर का कोई सिस्टम था नहीं। द जीएम हैड नो आइडिया हु इज इन द फैक्ट्री एंड व्हाट इज हैपनिंग। द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वाज अमेजिंग। डिस्पैच, सल्फ्यूरिक एसिड का डिस्पैच, हमारा डिस्पैच लेबर बताता था कि आज किसको माल जाएगा, किसको माल नहीं जाएगा और किसको कितना माल जाएगा, ऑल डिपेंडिंग अपॉन उसको डाला कौन ज्यादा दे रहा है। While doing, there was literally no laboratory to test anything and the testing was being done by the peon of the general manager. और मैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट चला रहा हूँ, मतलब 1000 डिग्री पे सल्फर को बर्न करते हैं, 350 डिग्री सुपर हीटेड स्टीम निकलता है और हम बना तेजाब रहे हैं। इतना डेंजरस प्लांट और इस तरह से हम लोग चला रहे थे। All the payments were released as per the whims and fancies of the account staff after taking approval from the बड़ा साहब sitting in Delhi. मुझे याद है वो दिन जब हमारे पास डीजल का स्टॉक नहीं होता था जनरेटर के लिए, तो जैसे ही स्टॉक खत्म हुआ रात को 12 बजे जीएम साहब ने अपना वो फैक्ट्री व्हीकल उठाया, ड्राइवर को जगाया और निकल पड़े। दो कैन डीजल का वो ड्रम, सॉरी 2 ड्रम डीजल का कैश में खरीद के लाके फिर प्लांट चालू किए। And this happened many times. The entire effort used to be just to keep the plant running under any circumstances. प्लांट में कभी पेंटिंग नहीं हुई थी, तो अगर कोई भी चीज खराब होती थी, लीकेज होती थी, तो हम उसमें रंधा मार के एग्रॉइड ऑक्साइड लगाकर काम चला लेते थे। 30 साल तक यहाँ पे मेरे लोग थे और हैं, अभी भी हैं, और वे अपने सिस्टम्स को अपने पेस के हिसाब से, अपने ढंग के हिसाब से चला रहे थे। मेरे स्टाफ का रिलेशनशिप मेरे साथ ये था कि साहब तो चोर है, और मेरा रिलेशनशिप उनके साथ था कि वो काम चोर है। There was basically a lack of interest because this is not even a small percentage of our main business. तो बस जैसे तैसे करके मैं चला रहा था। फिर मेरा भाई आया 2018-19 अप्रैल को और बोला भैया तुमको ये अटेंड करना ही पड़ेगा। And I attended sir's one-day course on 19th April 2018, and I have not touched my golf clubs in the last 4 years from that day till today. It's not a good thing that I haven't touched my golf clubs, but I have touched many other clubs. I have soared so high, you all cannot imagine, in my own life, in front of my parents, in front of my friends. I'm just going to tell you all. और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मेरे को सर आज आके बोले थे यार थोड़ा आके बात करो कि कैसे तुम्हारी जिंदगी बदली। मैं वही चीज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें कोई शो ऑफ की बात ही नहीं है। सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मुझे याद है सर ने कहा था कि बॉस तुम लोगों को बिजनेस करना आता ही नहीं है। अभी तो सर थोड़े बहुत सोफिस्टिकेटेडली बात करते हैं। हमने बोला घुटने में है तुम्हारी दिमाग, घर पर अपना दिमाग छोड़ के आना, तब इस कोर्स के बारे सोचना। अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे तो डोंट वेस्ट माय टाइम। मैंने उस दिन से सर का 4 दिन का ये वाला कोर्स अटेंड किया, 8 मंथ्स का कोर्स अटेंड किया, 10 बार ही इनका मैनिफेस्टेशन क्लास अटेंड कर चुका हूं। एलुमनाई सेशंस में इतनी लर्निंग होती है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं। I hope you guys are not getting bored
and it's all good. I can carry on. Awesome. So let me share a little bit of what I implemented over the past 4 years staying in the course. मैंने कभी भी प्रॉफिट को बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं दिया. मैंने सिर्फ इस कोर्स को बिगिनिंग में 1-1.5 साल के लिए सिर्फ इंप्लीमेंटेशन पे काम किया. I have stayed in my factory from January 2019 till December 2019, Monday to Friday. And surprisingly, आज भी मैं 5 दिन हफ्ते में अपने फैक्ट्री में रुकता हूं, मगर प्लांट को चलाने के लिए नहीं रुकता हूं. मैं 1 घंटा एवरी ऑल्टरनेट डे स्पेंड करता हूं अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए. उससे ज्यादा वक्त मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज एफएमएस और चेकलिस्ट पे है. हम कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, सामने है. हमारे लोग वो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो वैसा ही है. एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर एंड ऑन माय पर्सनल वर्टिकल ग्रोथ. I have hired 34 new people. I have removed only 2 people in the. Actually, मैं आपको एक बात बताऊं, मॉम डैड मुझसे पूछ रहे थे और वेदांत भी कि भैया तुम इतना टाइम क्यों स्पेंड करते हो वहां पे. मैंने कहा यार, दिस इज लाइक अ बोर्डिंग स्कूल फॉर मी. 5:30 बजे उठता हूँ, 10:30 बजे सो जाता हूँ. मेरे लिए ये मेरा आउट ऑफ ऑफिस है. 5 दिन हफ्ता. मैं हर महीने 1 हफ्ते हॉलीडे के लिए जाता हूँ. सर आपको पता है ना ये बात? तुम सारा टाइम फोन करते रहते हो. आ जाओ सर. I अभी keep calling him. I keep sending him photographs. When he doesn't listen, I send it to Aparna ma'am. She also troubles him. पता नहीं आते नहीं है. But every month I work for 3 weeks and take off for 1 week. I don't work more than that. And that is the reason that I stay in my factory, because I'm achieving way too much over there. आप बिलीव करोगे, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा. तो ऑपरेशंस में आपको कितना टाइम लगता है फैक्ट्री चलाने में? सर 1 से 1.5 घंटा हर दूसरे दिन. वेरी नाइस. और सर अभी मेरे पास मार्केटिंग का आदमी नहीं है. जो मेरे जनरल मैनेजर साहब हैं वो ही मार्केटिंग देख रहे पिछले 10 सालों से. तो अब मैं एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का आदमी लाऊंगा, तो मुझे वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आप जो कह रहे हो, तो आप ऑपरेशंस में कितना टाइम लगाते हो? आप तो कह रहे हो मार्केटिंग के लिए चाहिए. ऑपरेशंस फैक्ट्री चलाने में कितना टाइम लगता है? सर 1 to 1.5 hours every second day. फैक्ट्री में? मैं फैक्ट्री थोड़ी ना जाता हूं सर. I didn't get your answer. What do you mean by operations? You mean the running of the plant itself? Yes. I don't need to look into that. There are 40,000 parameters which are noted every day. So Nagaraju ji looks into that. 300 help tickets are issued to him, and he every day, and he takes care of it. Why should I look into the running of the plant? IMS के through पूरा अपना purchases होता है. मैं नहीं देखता हूँ सर. मैं तो 5 मिनट भी नहीं बिताऊं. Why should I? प्लांट चलाने में अभी आपको टाइम नहीं लगता? सर पहले प्लांट चलती ही नहीं थी, मैं तब भी टाइम नहीं लगाता था. आज प्लांट मेरी 120 टन की 121 में चल रही है, मैं तब भी टाइम नहीं लगाता हूं. खाली फर्क ये है कि अभी गर्व के साथ काम करता हूं. पहले मैं जाता ही नहीं था. अब 5 दिन हफ्ते में रुकता हूं वहां पे. इतना मोहब्बत हो गया मुझे उस जगह से. Have I answered your question, sir? Yes. So why don't you? Okay, yeah. Why don't you first complete and then you show us your. I have hired. I will show everything, sir. IMS is inventory management system. It's the most mind-blowing thing in the world. I have hired 34 new people and removed only 2 in the last 3 years. In fact, keeping with the philosophy of RJ sir, मैंने जनरल मैनेजर साहब को ही हटा दिया इस साल अप्रैल में, क्योंकि कोरोना में उन्होंने चीज को ठीक से हैंडल नहीं किया और मैंने उनको निकाल दिया. एक्चुअली निकाल दिया. और क्योंकि 40,000 पैरामीटर जैसे मैंने अभी बताए अपने प्लांट में सारे नोट होते हैं, तो जो उनका जूनियर है, who's I think 35,000 rupees CTC, he was looking after the entire plant for 6 months in between the entire corona period and running it fantastically. मैंने अपना रॉ मटेरियल स्टोरेज स्पेस 100% बढ़ा दिया और मैंने अपना फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज स्पेस 315% बढ़ाया. पैसा तो हरदम था ही ना यार, इंटेंशन नहीं था, समझ ही नहीं आता था. सर लेट मी टेल यू वन थिंग, विपुल कृतजी जी, दैट हर आदमी जो हमारे 170 लोगों का बैच था, हर आदमी अलग बिजनेस का था और हर आदमी का पहला क्वेश्चन ये था, सर मेरा तो बिजनेस बड़ा यूनिक है, आप कैसे करोगे? मेरा भाई स्कूल चलाता है, 4,200 बच्चे हैं. द खैतान स्कूल इन नोएडा, विच इज द नंबर 1 स्कूल इन नोएडा टुडे. वहां पे सारा पैसा पहले आता है. इन्फ्लेशन हो या वॉर हो या कुछ भी हो, कस्टमर वहां बना रहता है. सॉरी, वी आर टॉकिंग बिजनेस राइट नाउ. मैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट चलाता हूं, कमोडिटी बिजनेस है,
₹5 kg में सल्फ्यूरिक एसिड बिकता है और 20 रुपए kg में पानी बिकता है। झिकझिक, मतलब हिंदी छोड़िए सर, जिस तरह से बात होती है रामपुरिया भाषा में, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दिस इज रामपुर का चाकू वाला रामपुर, एंड दिस इज नोएडा, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड place in India. Both of us studied under Rahul ji. How did we do it? Two very different verticals. My brother is a graduate from Michigan Engineering, Michigan Ann Arbor. I went to North Carolina, failed out of there. I did not complete my graduation, and class 12 pass, I ran away to my factory. Now, a class 12 pass और एक Michigan Ann Arbor engineer, दोनों अलग अलग बिजनेस, कैसे दोनों सक्सेस पाए हैं? आप में से जो भी आएगा ना, जो भी सज्जन एनरोल करेंगे 8 मंथ के लिए, सर आप जरूर वेदांत को बुलाइएगा टू मेक देम हियर व्हाट ही सेज. How can two brothers be so successful in the same course, running two diagonally opposite things and being two diagonally opposite people? I have taken each and every word uttered from RJ sir's mouth as the gospel truth and not questioned anything. मेरे 25 लोग 2 बारी राहुल जी के मैनिफेस्टेशन क्लास अटेंड किए थे दिल्ली में. मैंने 32 पार्टियां दी हैं 2018 से, जहां लाइव सिंगर्स, टेंटेज एंड फुल केटरिंग है मेरे फैक्ट्री वालों के लिए. सिर्फ मेरे 25 स्टाफ, फ्रॉम 8,000 रुपी एम्प्लॉय टू माय जनरल मैनेजर, पियोन एंड ऑल, वो तो खड़े रहते हैं, 4th लेवल स्टाफ के साथ नहीं पार्टी करता, बट जो मेरा पीसी है, डीईओ है, डीएमई है, आई कैन नॉट टेल यू सर व्हाट अ ब्लास्ट आई हैव हैड. We have made a secular, सर मैंने आपसे शेयर नहीं किया, we made a secular temple in the factory. एक बार फोटो दिखाना भैया सचिन. अभी हमने ये बनाया है, सेक्युलर टेम्पल बनाया है, जिसमें I have ये है शिव जी का टेम्पल, क्योंकि शिव जी हमारे इष्ट हैं, एंड इसमें जीसस क्राइस्ट हैं, अल्लाह है, Guru Gobind Singh ji hai, Buddha ji hai, and proper big, these are 6 feet by 4 feet panels. So we have people coming and praying from all religions over here. It's mind blowing. ठीक है सचिन, thank you. I have earmarked. अब मैं आपसे ना धंधे के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले तो मुझे खुद बदलना पड़ा ना, तो मैं कैसे बदला और कैसे चला रहा हूँ फैक्ट्री को, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को. पहले आप कैसे थे ये बताओ ना सर. बता दीजिए. One day when I was in the class, sir came to me. He says, "यार पूरे इंडिया में तेरा फोटो है, देख पेज 3 में, and you are with 2 women like this." I said, "सर ये भूल से फोटो खिंच गया, ये आपके क्लास के बाद नहीं खिंचने वाला है." So I used to just be a party animal, and I was just having a blast. अंशुमन was a page 3 item. बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जिसको कहते हैं ना, बहुत बुरी तरह, बड़े बाप की बहुत बुरी तरह बिगड़ी हुई औलाद. 6 days a week party, only page 3. हाई सोसाइटी page 3 आइटम पार्टी होती है ना, आपने देखी है? और उसमें वो जो लोग देखते हैं, मतलब फैंसी क्लोथ्स पहन के सारा टाइम फैंसी डांसिंग करके, इधर लड़कियां उधर लड़कियां, सिर्फ ये इनकी जिंदगी थी और कुछ नहीं था इनकी जिंदगी में. ये बस सिर्फ पार्टी करता था और कुछ नहीं करता था, सिर्फ पार्टी. सो ये वहां से उठ के आया है. So I have earmarked 25 lakhs only to do kalyan of my people every year, regardless of the turnover and the profit. 25 लाख रुपया मैंने earmark कर रखा है. जिसके बच्चे की शादी हो, जिसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने कोई लोन ले रखा हो, मैं बुझाऊंगा. और पार्टीज करने के लिए, इन लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए, इन लोगों को कोर्सेज कराने के लिए, I have earmarked that money. This has paid me back many folds, as all the people in my organization have become like a Swiss knife. हर स्टाफ मेंबर मेरा मोस्टली किसी भी काम के लिए मैं उनको यूज कर सकता हूं, वो एक्सपर्ट हो गए हैं. आई कैन शफल देम बिटवीन मार्केटिंग, अकाउंट्स, परचेज, स्टोर्स, डिस्पैच, डीईओ के काम के लिए, पीसी के काम के लिए और सीआरएम के काम के लिए. 25 स्टाफ में से एटलीस्ट 20 लोग ऐसे हैं जो सारे का सारा काम अब कर सकते हैं. इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. माय फिलॉसफी इज दैट आई हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग माय पीपल विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर. And everything seems to have changed. I believe the same blood which flows through me flows through them, and they feel the same pain I feel. और जो भी मेरी अपेक्षा है वही इन्हीं लोगों की अपेक्षा है. इनको एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ट्रीट करने लगा हूं. और अभी इसी सेशन में मेरी ईए भी है, मेरी डीएमई भी है, और 2 लोग और हैं जो मेरे फैक्ट्री से मेरी सारी बातें सुन रहे हैं. तो कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सर ने हमें एक चीज बड़ा क्लियरली सिखा दिया था कि भाई साहब, आप अपनी प्रॉफिट सोचते हो कि सिर्फ आपको पता है. आपके यहाँ का जो चपरासी है ना, वो तक जानता है कि आपने पिछले महीने कितने पैसे कमाए हैं. तो छुपाने की कोई बात ही नहीं है. मैं कोई बात ही नहीं छुपाता हूँ.
हमारे यहाँ 78 चेकलिस्ट हैं, या अभी 80 चेकलिस्ट हो गए हैं, और 65 या 70 FMSs हैं which are up and running. Actually, I don't look into this anymore. Meenu does everything. Sir, should we show them some of the FMSs and checklists? Yes. And then I'll carry on with the rest of it, sir. You can't stop me. अच्छा ठीक है, जल्दी Thank करना you. पड़ेगा मगर बता। दिखाओ क्या दिखाना चाहते हैं सर। मीनू आओ, सचिन आओ। तो मीनू आ जाएगी सर, ये दिखाएगी, क्योंकि मुझे आता नहीं है प्रॉपर्ली दिखाना, क्योंकि यही करती है सर। मुझे आता नहीं है प्रॉपरली दिखाना मतलब? सर एक्चुअली मैंने पहले तो बहुत मेहनत करके बनाया था, फिर सर मैं हट गया, अब ये बनाती है, ये देखती है, इसके पास अपना टीम है। मैंने कहा ना सर, मेरा डेली फैक्ट्री के ऑपरेशंस में या अकाउंट्स में या किसी भी चीज में ज्यादा इंटरफियरेंस है नहीं सर। सर इंटरफियरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यही लोग बोलते हैं कि सर आप फैक्ट्री आए ही मत करिए, आप आते हो तो खाली पार्टी पार्टी की बात होती है, सबको आप डिस्टर्ब करते हो और सबके FMSs रेड होते रहते हैं, तो आप अपने कमरे में ही रुको, किसी से बात भी मत करो। शी हैज टोल्ड मी इफ यू नीड टू टॉक टू एनीबडी you had better talk through me. She had just gone for a 2-day holiday and she said, I'm very nervous because you have gone to Rampur without me. I said, who is the MD, yaar? You are making me feel like a fool in my own factory. And actually, sir, it's become like that. So she is aware of all the FMSs and checklists. This is Meenu. नमस्ते जी, बहुत बढ़िया, बताइए जी। सर अभी आपको मैं कौन सा FMS दिखाऊं? आप कौन सा किस चीज से दिखा? रिलेटेड देखना चाहते हाँ हैं ये सर? बता दीजिए। कुछ भी वॉल्यूम आप- कम हो गई है। हाँ जी, लेट्स से फॉर एग्जांपल CRM ट्रांस, ओके, कुछ आप एम्प्लॉय इन आउट चेकलिस्ट दिखा दीजिए, फैक्ट्री व्हीकल गनमैन चेकलिस्ट। मैं आपको फैक्ट्री व्हीकल रनिंग दिखा देती हूँ। सचिन Yes, ma'am. तुम ही दिखाओ ना भाई, आस्किंग सर। सर इसमें हमारी फैक्ट्री की जो व्हीकल है वो किस टाइम फैक्ट्री से बाहर जाती है, कब आती है, कितने किलोमीटर चलती है और किस यूज पे गई है, पर्सनल यूज के लिए गई है, ऑफिशियल यूज के लिए गई है, वो सारी डिटेल्स इस पे आती है। आज जैसे 27 को गाड़ी सुबह गई थी रोहन सिंह को लेके, और ये सुबह 3 बजे के करीब गई और 4 बजे आ गई। अभी एक प्रवीण कुमार गुप्ता जो हमारे ड्राइवर है वो ऑफिशियल यूज के लिए गाड़ी को ले गया था। तो टोटल जो है हमारा फैक्ट्री व्हीकल है 2 किलोमीटर चला हुआ है। तो और आपके इस- पास हर गाड़ी जहां भी जाती है, जो भी जाती है, सब कुछ आपके पास डेटा पूरा आ जाता है। बिल्कुल आता है सर। और और कौन ये कौन लोग- लोग गए हैं अभी आप देखिएगा 2887 ट्रिप नंबर, उसमें मिस्टर SK कश्यप और अविरल सक्सेना जो हैं वो 2 गए थे। तो जितने लोग भी इस ट्रिप पे जाते हैं उनका भी नाम इसमें मेंशन कर देते हैं। वेरी नाइस जी। तो नेक्स्ट, इससे हमको पता होता है कि गाड़ी कब कहाँ गई थी और उसका एवरेज भी आ जाता है। इस पे हमारा PC भी है, PC भी चेक करता है और वो Very उसके ऊपर हेल्थ टिकट भी कर देता है। अच्छा, ये सब हिंदी में इसलिए है क्योंकि ये रामपुर है, हमने इंग्लिश में कुछ किया ही नहीं, हमने पूरा भाषा, सारे FMSs, चेकलिस्ट, सब चीज हिंदी में ही बना दिया है। तो ये आपके जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं या कैसे किस्म की, क्या क्वालिटी है? सर, मैन, हमारे जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो लोग कोई 8th पास है, कोई 5th पास है, तो वो लोगों को नहीं मालूम है ये सारी चीजें। तो उनके लिए हमने सारा कुछ हिंदी में बनाया है, इवन गूगल फॉर्म भी हमने हिंदी में बनाया हुआ है उनके लिए, और PC एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में बनाया है। हेल्थ टिकट जो हमारा रेज होता है उसके लिए भी हमने हिंदी में ऑप्शन रखा है कि आप हिंदी इंग्लिश। कौन भरता है? वेरी नाइस। तो यही है सर हमारे जो, जैसे ये ड्राइवर भरता है, ये ड्राइवर भर रहा है, ये 10th पास है, ये ड्राइवर भरते हैं ये लोग? ड्राइवर भर रहा है, और एक इसको ड्राइवर भरता है, और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो 8th पास है जो अभी हमारे पास है फिलहाल, वो भी इसको फिल करता है। जब ड्राइवर उसको लिख के दे देते हैं तो गूगल फॉर्म वो फिल कर रहे हैं। सर आपको एक CRM टोटो दिखाते हैं, जरा दिखाना अभी कौन सा ट्रक अंदर आधा बाहर गया है। Yes, sir. We are just showing you the form for trucks. Just 1 second. ये FMS है आपका? जी सर, Explain CRM का है। इसमें हमारे जो भी आज ट्रक आई हुई हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, ये नवनिधि में जाने वाली हैं और इनका अप्रूवल हो चुका है, इनका स्टेप और सेंचुरी पल्प का भी। और ये जो ट्रक्स हैं इसमें दिखाना सचिन आगे क्या है, इनका टैंकर कैसे अभी कहाँ पे पहुंची, किस स्टेप पे। ये सर यहाँ से स्टेप 1 से जब ये चालान भरा जाता है, स्टेप बाय स्टेप में जो भी प्रोसीजर होता जाता है, वो जो पर्सन रिलेटेड है उस स्टेप से वो उसको फिल कर रहे हैं। जैसे स्टेप 2 में है मिस्टर सक्सेना, तो उन्होंने अपना फिल कर दिया। उसके बाद CRM के 2-3 स्टेप हैं, फिर CRM जो है लैब टेक्नीशियन उनको इन्फॉर्म पार्टी मैसेज क्या है ये? सर ये पार्टी दिखाओ। को मैसेज करना पड़ता है। सचिन एक बार इसको इनका एक खोल के दिखाना। सर जैसे आपने Amazon का सिखाया तो वही सिस्टम है।
अच्छा, अगर ये मैसेज भी भेज, अगर इसने व्हाट्सएप भी भेजा है तो ये व्हाट्सएप की फोटो खींच के डालेगा यहाँ पर। हाँ जी सर, वो कितने बजे इन्होंने मैसेज किया था और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके इसमें हम भेज देते हैं। सर डालेगा नहीं, डालना पड़ेगा, उसके बिना इसका स्टेप नहीं कंप्लीट होगा, और अगर स्टेप रेड हो गया तो इसका इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका CRM एमआई का स्कोर MI नेगेटिव खराब हो जाएगा। वेरी नाइस। तो ये अगर व्हाट्सएप भी कोई डालेगा आपकी कंपनी में तो वो भी यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल सर। वेरी ठीक है नाइस। सर। इसको बंद करिए। नेक्स्ट। अब ये जो हमारे 3 ट्रक्स जो आज जा रही हैं, इनके स्टेप आगे दिखाओ कहाँ तक पहुंचा हुआ है ये। पार्टी अभी- को फिर से मैसेज किया है। हाँ, अभी जो है हमारा 7th सर ये रियल है, रियल लाइव चल रहा है ये सर अभी अभी चल रहा है। टैंकर जो है अभी यहाँ पे नीचे के 2 टैंकर हैं, वो अभी हमारी फैक्ट्री में है। फिलहाल 7th स्टेप तक पहुंचा हुआ है ये। वेरी नाइस। ये वेटेज स्लिप लिंक क्या है? दिखाओ। वो सर दिस इज द वेब्रिज का स्लिप विच कम्स आउट कि कितना माल अंदर गया था, कितना माल भर के बाहर आया है। वेरी नाइस। और पीसी इसको चेक भी करेगा कि कहीं जो उसने एंटर किया वो तो गलत नहीं है बिल में एज कंपेयर टू दिस। वेरी नाइस। ये सब ट्रेडर्स को भी चल जाएगा जिनका वेबरेज है, या जिसमें सामान लोड करना है या सामान नापना है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने फोटो खींचनी है कि सामान ठीक आया, सामान ठीक गया। वो दिखाओ यार परचेज वाला एफएमएस, एक अभी सेकंड। इसको complete करो। अच्छा इसको कंप्लीट करो, इसको अभी कंप्लीट। सचिन इसी को कंप्लीट कर दूं। अभी इसके सचिन दिखाना कितने स्टेप का। इनवॉइस की भी दिखा दीजिए जरा, एसिड टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा दीजिए खोल के। हाँ, सचिन ये दिखाना जरा। अब हमारे पास एक लेबोरेटरी वाला है सर जो करता है। तो ये हर चीज की रिपोर्ट आती है। जी सर, ये सारा वो फोटो क्लिक करके और इसमें गूगल फॉर्म के थ्रू अपलोड कर देते हैं ये लोग। वेरी गुड जी, वेरी गुड। बाय प्रोडक्ट और इस पे पीसी है और Is a पीसी commodity. उसको सारा चेक कर रही है। अगर कहीं भी उनको चालान नंबर या कहीं कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो इमीडिएट वो उस पे हर टिकट रेस कर देती है। तो हमारे हर सारे हर चीज का आपके पास प्रूफ है कि ये Right. हो गया है तारीख के साथ। जैसे ये 27 नवंबर को हुआ है जी सर। और ये उसकी पूरी रिपोर्ट यहीं पर आ गई। जी सर। वेरी गुड। वापस जाइए। और सर मैं एक चीज बताऊंगी, नीचे आप देख रहे होंगे सारा जो डैशबोर्ड है, इस पे हमारा साथ में पीसी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इससे रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होती है उसमें क्या डिस्कशन होता है वो भी है। इवन जितने सर्कुलर निकले हमारे सीआरएम से रिलेटेड वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। वेरी नाइस। इसी के लिए बहुत इजी हो जाता है। पार्टी वो एक ही मैसेज लोग क्या को है लास्ट वाला, और ईमेल सेंड टू पार्टी। सर ये दिखाएं एक बार पार्टी मैसेज, ईमेल सेंड टू पार्टी मैसेज दिखाना ये। अरे इसका ही किया हुआ राहुल जी ने करवाया सर। Dear sir, your tanker number so and so sulfuric acid. Very nice. Sir, who is designated to send this email to the customer? Pardon me? सीआरएम भेजती है सर। ये ऊपर लिखा है हु में सीआरएम। हाँ वो सचिन, दिखा हाँ, दो। ये यहाँ पे हमारा ये सारा दिया है कि वो कैसे भेजेंगे और कौन भेजेगा। हर स्टेप में आप देखेंगे स्टेप नंबर हमारा जो 8 है उसमें सम्राट जी का नाम लिखा हुआ है और सीआरएम का लिखा है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए, तो उन दोनों के नाम है। और एमआई स्कोर भी इन्हीं का जा रहा है। जो भी हमारे स्टेप में जिसका भी नाम लिखा है सारा एमआई स्कोर उसी पर्सन के। और गूगल फॉर्म भी वहीं पर है, वहीं पर क्लिक करके गूगल फॉर्म खोल सकते हैं। सर गूगल फॉर्म खोल दीजिए वहां पर तो वो दिख जाएगा कि गूगल फॉर्म ये वाला भरना है। वेरी नाइस। मिस्टर सम्राट को ये वाला गूगल फॉर्म भरना है तो इसलिए उनका वहां पे नाम तो ये लिखा है। एसेट टेस्ट की फाइल ऐड कर देंगे, इनवॉइस की फाइल ऐड कर देंगे तो ये फॉर्म भर जाएगा। जी सर। ओके, इसको बंद करिए। ये सारे के सारे जो आइडियाज और चेकलिस्ट है और ये एफएमएस है, तो अंशुमन आपकी कंपनी में पहले था कि आपने कहाँ से सीखा ये सब? सर एक्चुअली मुझे तो सिर्फ एक्सेल आता है, वो भी 2007 पे, अभी भी मैं उसी पे काम करता हूँ। मुझे इन चीजों का कोई आइडिया नहीं है। मैंने अभी 2 फॉर्मूला खाली सीखे हैं गूगल के, which I'm very proud of. But after 3 years of completing this course, so I just did this on Excel and I told the DME कि इसको छाप के दो यार, and he छापोed the whole thing, and Ninu and he worked together along with everybody else in the factory and they did it. Sir, I have no idea how this is made. I don't know any formulas. वेरी नाइस। और ये जो सारा का सारा है, सारा सिस्टम स्ट्रक्चर बनाने में फिर वो डिड यू गो थ्रू ऑल द ट्रेनिंग्स दैट वी डिड और डिड द स्टाफ गो थ्रू दैट? वो तो सर बताओ किसने? सर एक्चुअली हम लोगों ने जब ये बनाना शुरू किया था तो
जिस भी जैसे लाइक परचेस का बना रहे हैं तो परचेस में जितने लोग नहीं नहीं सर, ये बोल रहे हैं कि आपने क्या सर आपने कहाँ से सीखा? आपको आता था पहले? सर आप बता दो, वो पूछ रहे हैं। सर कुछ भी नहीं आता था, सर ने बताया ना कितने बुरे हाल में चल रही थी फैक्ट्री। नहीं नहीं, आपको आता था क्या? क्योंकि सर ने तो करा नहीं, तो आप लोगों ने किया, तो आपको आता था क्या? आप लोगों ने कहाँ से सीखा? सचिन, तुमने ये फॉर्मुलेशंस कहाँ से सीखे यार? आपसे। सर पहले एक्सेल ही आता था, फिर बाकी यूट्यूब वगैरह सर्च करके अपना यहाँ सीखे थे। मतलब सर से ही सीखा ना? जी जी बिल्कुल सर। सानिध्य आइडिया- सर से, सर सानिध्य सर से। ये आइडिया तो यहीं से मिला था सर। बट वेरी गुड। नेक्स्ट। जो है आपने ये सब बताया तो आपका सिस्टम फॉलो कर रहे हैं टिल नाउ, अभी तक हम लोग पूरा कर रहे हैं। Sir, you know, so many times we still say this is RJ sir's philosophy. Follow it like this. अभी ये एक लॉन्च करने वाली थी एक चेकलिस्ट विदाउट अ पीसी, तो मैंने कहा यार मत करना, बिना सर का फिलॉसफी मत चेंज करो यार। उनका नॉलेज है, उनका साइंस है, या तो तुम अपना साइंस छाप लो फिर। Then she changed it to getting a PC. सर एक चीज Over और it. शेयर करूंगी आपसे, अब हमारे यहाँ जो लोग पहले जिस तरह से करते थे पेपर में, पेपर वर्क जो होता था कि ड्रॉर में पड़े हुए पेपर्स, अब सब लोग भूल गए कि कैसे काम करना है। विदाउट एफएमएस और विदाउट चेकलिस्ट 10 मिनट भी नहीं चला सकते ये लोग। एक दिन इंटरनेट बंद हो गया था रामपुर में ड्यू टू अयोध्या के लिए कुछ था, तो ऑर्डर थे वो बंद। उसके बाद थैंकफुली हम लोगों ने इसके प्रिंट आउट्स निकाल रखे थे पहले से, उस पे इन लोगों ने अपना एग्जैक्ट टाइम भर भर के रखा। अदरवाइज सब लोगों ने रात में मुझे कॉल किया 12-1 बजे कि मैम अब क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। तो फिर सचिन ने सबको मेल किया प्रिंट आउट, सबने डाउनलोड किया। अदरवाइज तो हमारा एक दिन भी अगर नहीं चलेगा तो हम लोग तो बहुत तो आपका पेपरलेस ऑफिस हो गया, मोर और लेस? हाँ जी पेपरलेस ऑफिस हो गया। बिल्कुल पेपरलेस। वेरी बेसिक नाइस। आ रहे हैं करने Okay. में। हमारे जितने भी Next. डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों ने उसके पीडीएफ बना के इसमें अपलोड किया है कि अगर कहीं कुछ मिस हो जाता है तो हम लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। वेरी नाइस। लेट्स गो बैक। यस सर। हाँ जी, और बताइए कैसे होता है, क्या होता क्या है? दिखाओगे बताओ? IMS दिखा दो। दिखा दो, हाँ। बढ़िया। सर हम दिखाए, हमारा पूरा एचआर भी एफएमएस पे ही है सर, और चेकलिस्ट पे है। HR दिखा दो। एचआर दिखाओ, Sir, IMS also, sir. Inventory management system, sir. दोनों दिखा। सर आप बताइए क्या? सेल्स दिखा दीजिए, सेल्स। HR दिखा दो। यस सर। एचआर में क्या? वैकेंसी दिखा, वैकेंसी दिखा रही है। स्टार्टिंग नहीं नहीं, आप ये दिखाओ, आदमियों के आने जाने का दिखाओ ना। तो सचिन फोटो इन तो एंड है ना आउट, उसमें। इन एंड आउट दिखाओ। इन आउट दिखाओ, एम्प्लॉय इन आउट। ये सर ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, बिकॉज शी इज लुकिंग आफ्टर द एचआर एंड एडमिन, शी हैज मेड एवरीथिंग। आई हैव जीरो नॉलेज ऑफ दिस चेकलिस्ट और एफएमएस। सर ये क्या इसमें है? हमारे कौन से एम्प्लॉइज जो हैं वो कितने बजे आए थे, उनके फोटोग्राफ्स भी इसमें लेते हैं, और कुछ एम्प्लॉइज इनका है जिनकी कि हम लोग वहाँ पे चेकिंग करते हैं, तो वो हुआ या नहीं हुआ वो भी इसमें मेंशन ये होता है। दिखाओ जरा, ये इमेज क्या है? सचिन फोटो दिखाना किसी भी एक एम्प्लॉय का। ये हमारे एम्प्लॉय हैं जो सुबह जब भी आए थे तो 9:15 पे इनका फोटो क्लिक किया गया था। ये उस टाइम का है। तो ये enter जो भी एंटर करता है आपकी फैक्ट्री में, उसकी फोटो और टाइम सब कुछ उसमें मतलब उसमें नोट हो जाता है। हाँ जी वेरी गुड जी, वेरी गुड। और ये सब ऑटोमेटिक चल रहा है कि किसी को घुसना पड़ता है इसमें? सब लाइक व्हाट सर? मतलब ये सब ऑटोमेटिक चल रहा है कि आपको घुसना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको कुछ नहीं 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 क्वेश्चन ही नहीं समझ आया सर। हमें क्वेश्चन ही इतना रिडिकुलस लगा कि हमने सिस्टम लगा। फ्रिस्क्ड एंड फाउंड क्लीन, मतलब ये क्या हुआ? इनको वो इनकी उनका जो बैग है उसमें हम लोग चेकिंग करते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि कुछ बाहर तो नहीं जा रहा है, तो उनके जो बैग्स होते हैं उसको चेक करते हैं और उसके बाद वो लोग बताते हैं कि हाँ ठीक था। वैसे वेरी अभी नाइस। तक कुछ केस हमारे पास ऐसे आया नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट। टाइप्स भी आ जाता है हमारा। वेरी नाइस। तो एचआर में आपका सारा हर एक जगह का हर एक अलग अलग चीजों का आपका पूरा मतलब आपने पूरा सिस्टम बना के इसको ऑनलाइन डाल दिया है। जी सर। ऑनबोर्डिंग एफएमएस क्या है? इंडक्शन? सचिन दिखाओ, कौन सा दिखाना है? ऑनबोर्डिंग दिखाओ। दिखा दो। ये क्या है? हमारे यहाँ एम्प्लॉय जब ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद ये एफएमएस तब स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें सीटीसी ब्रेकअप होता है इनका, उनका पूरा बताओ, रेज्यूमे समझाओ। है, वो सारी चीजें इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं जो भी हैं। और जो जिनका आप ग्रे देख रहे हैं वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेफ्ट हो चुके हैं। और इसमें जैसे कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो उनका हम एक सीवी वाला दिखा दो सचिन, सेकंड स्टेप।
ये सब कुछ सारा गूगल पे ही चढ़ा हुआ है सब, अब कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं। सारी चीजें तो अब ये अपने फोन से आप देख सकते हो कभी भी, अगर आपको इसका सीवी खोल के देखना है बिल्कुल। तो आप कहीं भी बैठे हो, आप यू आर सिटिंग इन हवाई, यू कैन जस्ट पिक दिस अप एंड लुक एट व्हाटएवर यू वांट टू लुक जी सर, जी एट। सर। ओके ग्रेट, नेक्स्ट। तो ये ऑनबोर्डिंग है कि पहले आप वो सीटीसी ब्रेकअप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड जो है, वो सारी चीजें, सब चीजें हम इसमें फिल कर देते हैं। सर जब हम इसमें घुसे तो हमें ये दिखा कि 2 लोग हैं हमारे फैक्ट्री में जिन्होंने अपना रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ दे रखा है एज पर द आधार कार्ड, और 3-3 साल एक्सपायर हो गया उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट, एंड वी हैड टू रिमूव देम। आई कांट टेल यू सर द काइंड ऑफ डिटेल्स दैट दीज आर, एंड सर द बेस्ट थिंग इज दैट आई डोंट इवन नो व्हाट दे डू, and everything is done beautifully, and you can ask any question and they'll have the answer to that. उनके वोटर आईडी में और आधार कार्ड में डिफरेंट एज आ रहा था, तो वो फिर सारा हमको यहाँ पता चला, फिर हम लोगों ने अंडरस्टूड। सो लेट्स गो बैक टू दैट। आईएमएस दिखा दीजिए एक बार। यस सर। ये सर ये आईएमएस है हमारा, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का आईएमएस बनाया हुआ है हमने यहाँ पे। हाँ जी। ये डीजी पार्ट्स का हो गया, बिल्डिंग मेटेरियल का, हाउसकीपिंग का, टरबाइन का। अभी ये डीजी पार्ट्स का आप देख रहे हैं। अच्छा, तो ये इसमें 000 कुछ माल ही नहीं है। अच्छा ये सर ये नीचे अपना वन टाइम आइटम से आए और निकल गए अपना। हमने ये कैटेगरी डिवाइड किया हुआ, वन टाइम एंड रेगुलर। जो रेगुलर आइटम है उनका हमने मैक्स लेवल डिफाइन किया हुआ है, जिसके और किसी का आईएमएस दिखा दो जरा जो रेगुलर रहता है। यस सर, मैं मैकेनिकल का दिखाया था। केमिकल दिखा दो, मैकेनिकल दिखाओ। नहीं वो दिखाओ ना जिसमें रेगुलरली आइटम आते जाते रहते हैं। सर ये है ये सारे सच हाईलाइट करना, और वन टाइम और रेगुलर को। ये रेगुलर में ऊपर ही है ये तो। अच्छा ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, 000, इसमें इन्वेंट्री नहीं है। नहीं सर, ये क्लोजिंग स्टॉक है, एम कॉलम देखिए ना ये वाला। अच्छा ये वाला कॉलम है, सॉरी ये क्लोजिंग हमारा। अच्छा ये परचेज और कंजम्पशन है कि कितनी परचेज हुई कितनी कंजम्पशन। इसमें ये भी है, जैसे अगर आप 23 अक्टूबर में देखोगे 4 नंबर रो को, तो 23 अक्टूबर को ये परचेज भी किया गया है। इट्स लाइक अ लेजर आल्सो दैट वी हैव मेड ओवर हियर। इट्स अ रेडी रेकनर along with the IMS. correct, fair enough। इस सब में मैक्स लेवल डिफाइंड है और उसके हिसाब से ये चलता है। तो लाल आपका सिर्फ मतलब कोई है ही, मतलब बहुत कम लाल है। क्या मतलब क्या इस पे जो है ये हेल्प टिकट रेस, it is every minute sir, Shubhojit Nag sahab, this is every minute updation, this is live as we are talking। मैक्सिमम लेवल 6 है, बट अभी 0 हो रहा है, तो इस पे हेल्प टिकट रेस किया हुआ है। और सचिन फेयर इनफ ये इंडेंट भी हो चुका है सर, इसका 5388 इंडेंट भी हो चुका है। वहां दिखा दो जरा इंडेंट दिखाना। यस सर, 5388 दिखाना। ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक है। नहीं सर, यहाँ पे एक्चुअली जैसे हेल्प टिकट रेज होता है तो वो जो पीसी है वो इस पे कमेंट कर देती है कि हमने इस पे हेल्प टिकट रेज कर दिया, और हेल्प टिकट नंबर भी मेंशन करती हैं। यस सर, ये रहा आइटम। के बाद जो भी इंडेंटर है वो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैंने ये मटेरियल इंडेंट कर दिया है, तो पीसी वहां पे उसने लिखा हुआ है कि इंडेंट हो चुका, और इंडेंट नंबर भी लिख दिया। अब जैसे इसके लिए यहाँ पे देखिए इंडेंट नंबर इन्होंने मेंशन किया हुआ 5388। नहीं तो जैसे ही वो माल कम होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें चला जाता है परचेज में। नहीं सर, पीसी उसको वहां से चेस कर रही है। तो मतलब आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही वो रेड होता है पीसी उसका एक इंडेंट बना के परचेज में पीसी के ऊपर भी हमने एक ऑडिटर बैठा है। ओके, तो वो ऑडिटर ये देखता है कि पीसी ने हेल्प टिकट रेस किया है या नहीं किया। अगर पीसी ने हेल्प टिकट रेस नहीं किया है तो वो पीसी को हेल्प टिकट रेस करके उनको बोलता है कि आपने इस पर्टिकुलर इस स्टेप पे रोशन साहब भी हेल्प टिकट रेस क्यों नहीं किया। सर एक आईएमएस फिर से दिखा दे, वो रोशन साहब फादर इज विद हिम। इट विल जस्ट टेक one minute। यस प्लीज दिखाइए सर। सर यू आस्क द क्वेश्चन देन वी कैन आंसर इट, और यू कैन आस्क रोशन साहब इफ ही वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। नहीं बस आप आईएमएस दिखा दो और एक बार समझ लो। समझाओ सचिन। यस सर। सर यहाँ पे हमारा आइटम कोड बने हुए हैं, और यहाँ पे हमने रेगुलर वंस टाइम डिफाइन किया हुआ है। ये हमारी लोकेशन है, और ये आइटम नेम हो जाते हैं, और ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ये ओवरऑल जब से हमने स्टार्ट किया, जब से ओवरऑल परचेज एंड कंजप्शन यहाँ पे आ रही है अपना। ये लीड टाइम रिस्क फैक्टर वगैरह कैलकुलेशन के लिए होते हैं, हम अपनी लास्ट मंथ की एवरेज निकालते हैं अपना। पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, हमने मैक्स लेवल ऑटो मतलब प्री डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पे अपना।
6 हमको मेंटेन करना ही करना है, 10 मेंटेन करना ही करना है, 10 और ये 3, 10, 20 समथिंग। आप लोग कितने टोटल आइटम्स की IMS रखते हो? टोटल आइटम्स ये मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, सेफ्टी आइटम, रिफ्रैक्टरी आइटम, सब चीजें मिला के कितने आइटम होंगे IMS? अप्रॉक्स 1500 होंगे हमारे। 1500 आइटम होंगे सब कुछ मिला के। यस सर, यस सर। वेरी, और ये सब ऑटोमेटेड चलता है? यस सर, ऑटोमेटिक चलता है, अपना स्टोर वाले हैं वो इसको अपडेट करते रहते हैं। सर इसमें जो सर सबसे बड़ी बात यह है ना कि 95% ऑफ, यू हैव टॉट अस दैट 95% ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन एनी यूनिट is all recurring again and again. They are daily things, and we spend our time, waste our time as owners in looking into all of that. So this is that 95%. They have never asked me in the last 3 years what is to be purchased. They purchase as per this. उसमें भी सर 6 डिपार्टमेंट्स एक साथ बैठ, मतलब इट गोज थ्रू डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट द परचेज FMS. सो चोरी का कोई चांस ही नहीं है। कोई माल आया है वो तो दिखता ही दिखता है। अगर आप बोलो तो एक बार वो भी हम दिखा दें 1 सेकंड के लिए। हाँ, इतना इंटरेस्टिंग है सर, जरा दिखाना परचेज FMS। यस सर। इंडेंट टू ऑर्डर दिखाइए। जब मटेरियल अंदर आता है तो उसका फोटो लिया जाता है, वो है ना किसी स्टेप में? यस सर। ठीक है सर। तो सर मेरे को ना बेसिकली ये प्रॉब्लम था कि भाई आप मटेरियल खरीद तो रहे हो, क्या वो सही रेट पे आ रहा है, क्या वो सही क्वालिटी का आ रहा है, और क्या वो मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो कहाँ लग रहा है, और लगने के बाद जो पुराना मटेरियल रिप्लेस हुआ है वो कहाँ है। तो हमने एक शॉप फ्लोर और बना रखा है, और उस शॉप फ्लोर का भी ऑडिट होता है हर महीने, फिजिकल ऑडिट। सर कैन यू हियर मी? I think he's gone off. no, I'm here only. Yes. So, I mean, this is... Anshuman, I'm here only. Yes. Yeah, sure. So I heard that, sir. So a lot of integration of all departments have been done. And you know, sir, the basic thing is my people have created this. हमने उनके रजामंदी से, उनके हिसाब से इसको क्रिएट किया है, जिसके वजह से ये चल रहा है। अगर मैं यहाँ कोई सैप पैप ला के कोशिश भी करूँ ना सर, नहीं चल पाएगा। Very nice. How do Okay. I eliminate the corruption that the purchase manager does not place the order with any party? Sir, देखो, my guy has been with me for 30 years. There is at some point that you have to trust somebody. So what I do is once in a blue moon, I will go into the market physically, take the rates, go into the market and actually see whether the rates are okay or not, randomly of 25, 30 items. There is no problem to that. Supposing you have your son over there, he's not going to steal from you. So that much faith you have to have somewhere on someone. आप लोग अभी गुरिंदर, आप लोग अभी ना थोड़ी देर रुक जाओ। कंपनी कल्चर आपको नहीं मालूम, अभी थोड़ी देर कंपनी कल्चर पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा जो किस किस किस्म की कंपनी कल्चर है। तो आप फिर ये सवाल पूछना। ओके, आर यू यूजिंग सम ERP फॉर इनवॉइसिंग, बिलिंग? इनवॉइसिंग और बिलिंग कैसे होती टैली है सर, पूरा टैली और गूगल शीट पे ही चल रहा है हमारा फैक्ट्री। वेरी गुड। नेक्स्ट, लेट्स गो बैक। कुछ अच्छा दिखाओ, एक वो दिखाओ, सल्फर रिपोर्टिंग दिखाएं सर, सल्फर का। हाँ सचिन नहीं, एक कपिल देव देखते हैं सर। हमारे यहाँ क्या था, 2 लड़के थे, सब उनको यूज करते थे बिकॉज हमने उनको गार्डनिंग वार्डनिंग सब चीज के लिए रखा था, सब चीज आता है उनको, तो सब उनको मिसयूज कर रहे थे। तो वो हमारे ऑलराउंडर्स है। कपिल देव एक ऑलराउंडर है, तो हमने कपिल देव चेकलिस्ट बना दिया। ये समझाओ 2 मिनट, मतलब वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स वी हैव मेड। और एक सेकंड वो व्हीकल वाला दिखाओ ना, व्हीकल जो व्हीकल साफ सफाई करते हैं। अच्छा मैं भी दिखाती हूँ सचिन, इसका अभी की डेट में दिखा दो, लास्ट 2-3 डेज का। किसका? ये कपिल देव चेकलिस्ट में दिखा रही हूँ सर। इसमें क्या था कि सारे लोगों को ये होता था कि दोनों उनको चाहिए होते थे और बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। अभी क्या होता है कि हम लोग इस पे बस यहीं पे रोक दो। अभी इस पे सारे लोग जो हैं जिनको भी इनसे काम करवाना होता है वो लोग इस चेकलिस्ट में मेंशन कर देते हैं कि किसको चाहिए और क्या करवाना है। जैसे फ्राइडे को 26 को आशुपन जी ने इसमें ऐड किया हुआ है इन दोनों के लिए। राकेश लिखा हुआ है कॉर्नर में और एक जगह वीर सिंह लिखा हुआ है। तो इनके लिए वो क्लीनिंग करवाएंगे स्टोर नंबर 1, 2 और 3 की। और उसके बाद जब शाम का टास्क डन हो जाता है तो ये 2 इमेज डालते हैं उस जगह का। दिखाना सचिन ये वाला।
और दूसरा इमेज भी दिखा दो। अब इसमें क्या होता है सर, कभी कभी टास्क डन नहीं हो पाता है तो उसमें वो पेंडिंग डाल देते हैं। सचिन कहीं किसी का आया है पेंडिंग में? अभी देखो, एक सेकंड रुको। और एक घंटे में डिवाइड हो चुका है सर। हाँ मतलब every hour where these people will be utilized, it is there. There is a PC who sits on this, and there's a person who physically goes and verifies whether the work has been done or not. The before and after photograph. Now show the vehicle checklist. सचिन दिखाना व्हीकल क्लीनिंग का। Vehicle cleaning checklist है सर। यस सर। और ये हमारा ड्राइवर भरता है, जो हमारा टेम्पररी ड्राइवर हमने सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू ले रखा है। ओ आई हैव ओनली, कितने पीसीज हैं हमारे पास? 3, कितने हैं? 4 पीसीज हैं, बट वो बहुत ज्यादा और काम भी करते हैं, वो सिर्फ पीसी का काम नहीं करते हैं। वन इज हर ईए, शी हैज 2 EA, one EA, so he is also her EA and he is also the PC. One is a auditor and a PC. सर ये डेली जो है अपडेट करते हैं यहाँ पे हमारे जो ड्राइवर हैं, जितने भी इसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसको यहाँ पे फिल करते हैं वो लोग। अगर क्या क्या है दिखाओ, तो बड़ा करो स्क्रीन, सचिन को और बड़ा कर दो बाबा। रेड जो है कहीं पे दिखा सकते हो, कहीं पे अभी लास्ट मैम ये स्टार्टिंग में ये वाला गाड़ी की सर्विस की आवश्यकता है। ये उन्होंने लिखा था, ड्राइवर ने मेंशन किया था कि गाड़ी की सर्विस होनी है, तो इस पे ये कितने दिन से भेज रहे थे, दिखाना एक बार। लास्ट कितना डेली अपडेट करते हैं? यस मैम, वो फिर पीछे का बहुत डेटा खुल जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये जो है सर, इस पे उन्होंने अपडेट कर दिया था ड्राइवर ने अपने साइड से कि हमको गाड़ी ठीक करवानी है, तो पीसी ने इसके ऊपर हेल्प टिकट रेस किया था। एक बार सचिन दिखा सकते हो इसका हेल्प टिकट नंबर 4528। It's more important is that, sir, this is the way the vehicle is maintained. And you come to a factory and see the vehicle, they've kept it like a Mercedes from inside. It's so beautifully maintained. मैं चढ़ता हूँ कितनी बारी, अभी मुझे एक शादी अटेंड करने जाना था, मैं उस व्हीकल में गया जहां ये डीजल के ड्रम्स वगैरह भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। So beautifully maintained, you cannot imagine. I was shocked. Very nice. Only because of this checklist. Sir, I implemented 3 or 4 checklists on my own and FMSs, and then my people did everything. I just said मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. Obviously मुझे भी काम करना पड़ा, direction देना पड़ा, but ultimately I am a winner. I am holidaying every month for 7 days, 5 days. ये सर यहाँ पे उन्होंने हेल्प टिकट रेस कर दिया था, जो हमारे पीसी हैं उन्होंने। सारा हिंदी में है सर हमारे यहाँ काम। कि गाड़ी जो है हमारी सर्विस मांग रही है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने अपना गाड़ी अब ठीक करवाया। तो अब जब दूसरी बार उन्होंने भरा है वो चेकलिस्ट, तो उसमें वो ओके दिखाया। लास्ट अपडेट जो हुई थी उसमें मेंशन किया। सचिन दिखाना वो अब वो उस रो में लिखा आएगा ना, लास्ट अपडेट कब हुआ, ये देखिए लास्ट सर्विस डेट ये थी। अब जो है ये 10/11 नवंबर में हुई है ये। वेरी नाइस। खाना नीचे तक दिखाना एक बार सचिन। ये कब भरते हैं, कौन भरते हैं? ये ड्राइवर भरता है सुबह 10 बजे के करीब। सुबह 10 बजे। पाना सही है, खोलने वाला टूल सही है। डैमेज में ये है कि अगर कहीं गाड़ी पे कोई लाइक डेंट हो, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ निकल जाए, तो उस टाइम इसको मेंशन करना होगा उनको। तो ये Okay, so I guess we get an idea of the whole structure and the system. So मतलब आपने सब कुछ A to Z हर चीज मतलब सारा सब कर रखा है। आपका वो एक गार्ड की भी वो दिखा देंगे? अच्छा हाँ, गनमैन का मैं दिखाती हूँ सर। गनमैन चेकलिस्ट, लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या है ये सर? हमारे जो गनमैन थे, रात में इनको ये हम लोग को आइडिया नहीं हो पाता था कि ये लोग सिर्फ गेट पे ही बैठे होते हैं, ये पूरी फैक्ट्री के राउंड ले रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 6 स्टेप बनाया है, और ये गूगल फॉर्म के थ्रू, वही जो मैं बता रही हूँ आपको, जो कि 5th और 8th पास हैं जो लोग, वो लोग खुद इसको भरते हैं, और इनका टाइमिंग आफ्टर 8 o'clock शुरू हो जाता है। तो हर 6 स्टेप को वो अलग अलग तरीके से भरते हैं। सचिन दिखा दो जरा इसको। फॉग रहता है ना, इस वजह से थोड़ा ये अब जैसे वहां पे थोड़ा रामपुर में लाइट फॉग आ रहा है, कोई क्लियर वाला दिखा सकते हो? पुराना दिखा दो जो फॉग नहीं होगा। ये गार्ड को वहां पे खड़ा होना होता है, मतलब ये जाग रहा है,
उस वक्त में। ये 9 बजे मतलब 8:44 पे अलग अलग पोर्शन पे मैं इसका, सचिन पहले एक बार चेकलिस्ट दिखाओ, मैं ये दिखाती हूँ सर। यहाँ पे है स्टेप नंबर 1 में गेट नंबर 1 का लेना है, स्टेप नंबर 2 में गेस्ट हाउस का है, और सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो है वो गेट नंबर 2 में जाके खड़े होंगे और वहां से अपना फोटो लेंगे। स्टेप नंबर 4 में है इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड, बाउंड्री वॉल। तो हम लोगों ने वो मेंशन किया हुआ है अलग अलग एरिया जहाँ पे जाके गार्ड को फोटो खींच के वो अपलोड करना पड़ता है। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि लाइक इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है और वो फोटो उनका लेट अपडेट हुआ या फिर वो नहीं अपडेट किया, उसके लिए फिर पीसी उनको हेल्प टिकट ट्रेस कर देती है। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो मतलब आपको ये मालूम होता है कि कौन सा गार्ड रात को जगा हुआ था, सो रहा था, क्या कर रहा था, सब के कई बार ऐसा होता है कि जब एक गार्ड जो फोटो खींच रहा है वो जब आता है मेन गेट पे और वहां देखता है कि वो लोग सो रहे हैं तो वो सोते हुए भी फोटो खींच देता है। अच्छा, लेकिन तो वो अब उठाएगा ये नहीं उनको। आपके ये जो सारा सिस्टम लगाया तो लोग शुरू में क्या रेजिस्टेंस आई और अब कैसा चल रहा है? शुरू में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि रामपुर जैसी जगह में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये गूगल फॉर्म क्या है, कभी सुना नहीं उन लोगों ने। और फिर उनको ये होता था कि पता नहीं इंग्लिश में भरना है क्या है, फिर हम लोगों ने उनको बताया हिंदी में भरना है सारा कुछ। सचिन इसका एक बार गूगल फॉर्म दिखा दो, उनको बताते हैं कि आपको हिंदी में भरना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी जो चीजें हैं वो हिंदी में दी हुई है और आपको कैसे फिल करना है। अब उनके लिए भी इजी हो गया। अब कोई जितने भी गार्ड अगर चेंज भी हो जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यूज्ड टू हो गए हैं सर हम लोग इसके लिए। हम लोग मतलब पूरी टीम हमारी। Yes, they opposed it because my people opposed the accountability and they said that साहब प्लांट तो ऐसे नहीं चल पाएगी। मैंने कहा प्लांट बंद कर दीजिए, बीसीआई का कोर्स तो मैं लॉन्च करके ही रहूंगा। ना प्लांट बंद हुई ना कुछ हुआ, कोर्स जरूर लॉन्च हो गया और मैं फ्री हो गया। सिंपल। और सर फ्री हो गए। ठीक है जी, so we can shut down these systems. I think Just shut them down. Let me just complete. we've seen a lot of this. Yes. Thank you. कहते ना एक लाइन बोली फिर सब ठीक हो गया, तो बोला अच्छा ठीक है जी कर लेते। So I'm working from 5:30 in the morning to 10:30 in the evening even now, but I'm not working at the factory. I'm working at so many other levels, at so many different things. And I'm really enjoying my life. I mean, I'm really having a blast. So let me explain a little bit about how the implementation of this course has impacted my factory and my people and myself. मेरे 30 साल पुराने माली हैं बाबूराम जी, जिन्होंने हमारा कल्चर स्टेटमेंट बनाया, गर्व से आगे बढ़ो, which has become our slogan and is used everywhere. All the people in the organization have become one. And all the departments are integrated. Everybody, including the senior staff, is coming on time. Everyone is always busy as they know their KRAs, and more importantly, I know their KRAs. We have automated all the systems and everyone has their set jobs and they do only that and are supremely tied up. Lockdown के समय मैंने अपने CFO को जनरल मैनेजर का पद दे दिया कि साहब आप ही संभालो पूरी चीज। And this gentleman has single-handedly headed purchases, marketing, finance, and administration. In fact, I gave him and my EA Meenu a sharing in the profits of the company that I run. And because sir ने हमें सिखाया था कि आप खाली responsibility और बिना authority के या authority बिना responsibility के नहीं दे सकते हैं, and both go hand in hand. And as long as your company's heads feel that they are salaried employees, they will not have any feelings for your company. तो मैंने इनको लाइफ लॉन्ग के लिए सिक्योर कर लिया। मैंने सट्टा खेला और वो सट्टा बहुत आगे तक गया है। दोनों लोगों ने मुझे 100% फ्री कर दिया है। Yeah, but just for everybody, please, this is not much later. This is not during the program. This is not during the 9 months. This is when you advance and you are mature enough to do these things. So Abhi, don't try stunts. Sir, I did this after 3.5 years. And after extensively talking to you for at least 8-9 hours, we had 4 sit-down sessions, you and me, to talk what is to be done. It's not a small decision. You cannot play around with such things. But I'm just telling you how RJ sir has supported me and my brother even 4 years after completing the course. ज़्यादा मत बोलो, सब चढ़ जाएंगे, but ठीक है. Okay, next. So अब ईमीनू को तो मुझे शर्म आता है ये भी बोलने के लिए
क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन, HR, लाइजनिंग और 10 मेंबर का जो टीम है, they are all compromising of PCs, DEOs, CRM and DME. They are all reporting to her. She is also looking after all the checklists and FMSs, and she is actually like a catalyst between me and everybody else in the company. किसी को भी कोई काम होता है, जैसे हम बड़े बिलियनर्स को देखते हैं कि उनको डायरेक्टली कोई भी नहीं अप्रोच करता, EA के थ्रू करता है, तो मेरे यहाँ पे भी मेरे EA के थ्रू ही आते हैं और कल्चर ही वो बन गया है कि देविल से नहीं साहब वो मीनू मैम नहीं थी तो हमने आपको बताया नहीं, अब मुझे झाड़ना होता है कि भाई मैसेज तो दे दिया करो, जैसे नहीं साहब वो मैम के थ्रू आएंगे. सो इट्स बिकम सो कन्वीनियंट. नहीं तो पहले आदमी दरवाजा खोल के आ जाता था, प्रॉब्लम लेके आ जाते थे. हमारे प्रॉब्लम्स भी सारे शेड्यूल्ड हैं, ऐसा है ही नहीं अब कि कोई कुछ भी काम मुझे दे सकता है. मैं आप लोग को दिखाऊंगा थोड़ी सी शेड्यूलिंग. प्लानिंग इज नॉट एनी मोर फॉर द वीक और द मंथ और द नेक्स्ट डे. Our production, sales and raw material planning is now for a minimum of 60 days and it is closely monitored by my people and me. मैं हर दूसरे दिन 60 से 90 मिनट के लिए बैठता हूं इस प्लानिंग के लिए, और FMS चेकलिस्ट में कोई दिखाना होता है तो मैं वही उसी के थ्रू देखता हूं. So that अब मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं. देखिए पैसा कैसे कमाया जाता है उसकी पूरी फिलॉसफी, मतलब इन्होंने हमें टूल्स तो दे ही दिए हैं कि FMS और चेकलिस्ट लगाओ, मगर हम जो हैं, जो लीडर हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, द लीडर इज हु लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन. सो सर एक्चुअली टीचेस यू हाउ टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन. पहले हमारे अंदर चेंज आना होगा, तब बाहरी चेंज आएगा. यू कैन मेक आउट व्हाट यू आर थिंकिंग बाय व्हाट यू आर गेटिंग. प्लीज रिमेंबर दैट लाइन ऑफ राहुल जी, दैट यू कैन मेक आउट व्हाट यू आर थिंकिंग बाय व्हाट यू आर गेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, अभी जब 30 महीने के बाद मेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट को मुझे बंद करना पड़ा था, जो 18 महीने के बाद हमें करना होता है. बड़े डेंजरस लेवल्स पे मैं चला रहा था. अभी अक्टूबर 2021 को, लास्ट मंथ ही मेरा लॉकडाउन था, तो क्या हुआ, मेरे को 2000 टन सल्फ्यूरिक एसिड खरीदना पड़ गया. मेरे 3500 टन का प्लांट है पर मंथ, 3500 टन का प्लांट है पर मंथ. तो मैंने 2000 टन माल बाहर से खरीद लिया सल्फ्यूरिक एसिड. वो मैंने खरीदा 8000 रुपए पे. उस टाइम मार्केट रेट चल रहा था 70, जो हमारे सौदे हुए पड़े थे, ऑर्डर्स थे, वो 75, 76, 77, 7800 के थे. तो मेरे लोग आके मेरे को बोले कि सर आप 2.5 करोड़ रुपया का शटडाउन ले रहे हैं, उसके ऊपर ये 15 लाख का लॉस और लग जाएगा. मैंने कहा एक काम करते हैं यार, कल 2-3 दिन के अंदर आई टोल्ड मीनू तुम पार्टी रखो. Within 2 days we kept a party, a manifestation party, fantastic party, carried on till 3 in the morning, and we said, everything is fine. And can you believe that 4 days after that, और मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सर, मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखा सकता हूँ, आप मार्केट से भी पता करते हो, अगर कोई भी केमिकल वाला यहाँ पे है, वो 8000 रुपए का रेट 14000 रुपए पे चला गया. 1000 टन मुझे पुराने रेट पे बेचना पड़ा, 1000 टन पे मैंने अपने शटडाउन का आधा पैसा कमा लिया, only because I gave that party. This is all the practice taught by Rahul ji on how to keep our vibrations high. He said that Einstein said, you cannot get solutions to a problem from the same consciousness it was created in. I am not afraid to lose out on anyone, as everyone has made themselves dispensable after the FMSs and checklists. My staff was not affected by Corona because हमने already 2019 में पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन स्विच ओवर कर लिया था. मेरे MDOs 3 दिन हफ्ते में वैसे भी अपने घरों से ही काम कर रहे थे लॉकडाउन के बहुत पहले से, और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा. हमारी फैक्ट्री वैसे की वैसी ही चलती रही. केवल 3 महीना मुझे बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा. So what are the results you got in terms of profits and revenue, if that can be also shared somewhere? Of course sir, I will in a bit. अब जल्दी से कर लो. सर आपने मुझे 15 मिनट डिले किया, 15 मिनट तो मैं लूंगा. गाइस मैं जल्दी करूं क्या? Seriously asking, if you want me to hurry up, I'll hurry up. देख लो सर. चलो. On the personal front, over the last 3 years, I have had innumerable vacations, and they have ranged between 6 to 10 days. In fact, during the second wave, मैंने अभी I think मई जून में हुआ था second wave, जब लॉकडाउन लगा था, 15 दिन मैं सुखविलास में रहा और 15 दिन मैं कुल्लू चला गया फिशिंग के लिए. मैंने बहुत बारी सर को फोन किया, आए नहीं. I have not missed a day of workout in the past 4 years. I love my workout. Sir had told us, ये बहुत पर्टिनेंट चीज सर हरदम बोलते थे
कि भाई जब तुम मेरा कोर्स खत्म कर लोगे तुम्हारी पूरी फ्रेंड्स ग्रुप बदल जाएगी। सर आप लोग मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात कहते हुए। मेरा पूरा का पूरा फ्रेंड्स ग्रुप बदल चुका है और जो मेरे स्कूल के लंगोटिया यार थे जिनको मैंने 10 साल तक छोड़ रखा था, मैं वापस उनके पास चला गया and we are all together like this today. I have been inducted into EO Gurgaon in 2019. EO is an entrepreneurs organization. It's a very prestigious organization to get into. I got into there in 2019 and my younger brother was inducted into EO Delhi in 2021. During the lockdown period, I have conducted manifestation classes for over 2,000 entrepreneurs as yourself. And now I have started an employee empowerment program known as Coffee with Anshuman. As I mentioned earlier, I have become a life coach under Mr. Alan Cohen, who wrote Chicken Soup for My Soul. I mentioned I have become a full-time options writer and love my new work. मैं जो भी कोर्स लेता हूँ मुझे हर बार सर टेस्टिमोनियल के लिए बुलाते, राहुल जी नहीं, जो भी मेरे टीचर्स हैं. आई मीन दिस वंस एस्पायरिंग गोल्फर, ये एक गोल्फर जो बंदा सिर्फ एक गोल्फर होना चाहता था, पार्टी एनिमल होना चाहता था, आज आपके जैसे दिग्गज बिजनेसमैन के सामने बात कर रहा है. तो दिस इटसेल्फ सो शोज व्हाट अ ह्यूज चेंज देयर हैज बीन इन माय लाइफ. मेरे मम्मी पापा जिनके घर में मैं रहता हूँ उनके साथ मैं हफ्तों नहीं मिलता था. पता नहीं किस स्टेट में मैं था, मेंटल स्टेट में, और हम लोग मिलते ही नहीं थे. और आज के डेट में मेरे इतने ज्यादा करीबी हो गए दैट no decisions are taken without me, personal or business. From becoming the black sheep, I am now revered and treated with a lot of honor and respect everywhere I go, especially within my family. ये सब कोर्स करने के बाद, सब चीजें करने के बाद ना बॉस, जो सबसे बड़ी चीज मुझे मिली कि सारी खुदाई एक तरफ और परिवार से जो इज्जत मिलता है ना वो एक तरफ, दोनों फैंटास्टिक. The kind of respect I get from my younger brother, I cannot even tell you. My father has left the entire business up to me and my brother. He is in the Limca Book of Records for golf, and now he is getting into the Guinness Book of World Records. And my mother spends all the time अपने grandchildren के साथ, मम्मी पूरा टाइम बिताती है और वो सिर्फ हॉलीडेज पे जाती है. हमारे फैमिली में के डाइनिंग टेबल में या एक बार घर आने के बाद धंधे के बारे कोई बात नहीं होता, प्रॉफिट के बारे कोई बात नहीं होता, कोरोना ने कैसे हमें मारा या हमने कितना पैसा कमाया वो बातें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि सर ने हमें सिखाया कि सिर्फ कर्म करो और जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे. आई एम फीलिंग ब्लडी वाओ अबाउट माई सेल्फ. आई फर्स्ट प्लान माई वेकेशंस एंड आई ऑलवेज वर्क इन बिटवीन माई ब्रेक्स. पहले मैं अपने सारे ब्रेक्स प्लान करता हूँ और बीच में काम करता हूँ. मीनू, जो सबसे मेरा तगड़ा पॉइंट रहा है वो मेरा शेड्यूलिंग रहा है. मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट वो शेयर करूंगा, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाऊंगा. मीनू, कैन यू जस्ट शो द लेटेस्ट शेड्यूल? द वे माय लाइफ इज शेड्यूल्ड सर, यू कांट इवन इमेजिन. इट इज सो ब्रिलियंट, आई जस्ट लव इट. एक शेड्यूल दिखाना जो हमने अभी लेटेस्ट फैक्ट्री में किया है. फैक्ट्री में जाने से पहले मेरा ये शेड्यूल रहता है जो शाम को पहुंच जाता है कल के काम का. ये लेटेस्ट था ना मीनाक्षी? जी. ये आप लोग पढ़िए. ये हमने ये 80 kg एक हमारा एक और FMS है नोन एज अतिथि तुम कब जाओगे, जो बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग आते हैं उन लोगों को जो लाइजनिंग होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आ गया, कोई DM के यहाँ से आ गया, तो हमने एक चेकलिस्ट बना दिया, तो अतिथि तुम कब जाओगे. तो ये वो वाला है 80 kg, 30 मिनट के लिए मैंने डिस्कस किया था. तो दिस इज हाउ द शेड्यूलिंग इज डन for the entire day when I go to the factory, just like it is in a multinational organization. इसके बिना ना मैं चल सकता हूं ना मेरे लोग चल सकते हैं. चेंज कर दीजिए. The business results are as below, and frankly my friends, I didn't give a damn, क्योंकि मैंने जब से ये कोर्स लॉन्च किया है सर का, तब से मैंने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम ही नहीं किया है. 5 रुपए kg पे सल्फ्यूरिक एसिड बिकता है, 20 रुपए kg पे पानी बिकता है. 3 नए प्लांट्स आ गए मेरे विसिनिटी में. मैं रामपुर में हूं, तो मुजफ्फरनगर में, देवरिया में एंड इन दिस प्लेस लखनऊ के पास 3 नए प्लांट्स आ गए, और हरियाणा में भी एक प्लांट आया है. और उसके बावजूद मैं आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहता हूं. दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम सब बिजनेसमैन हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. एक बार दिखाना भैया प्रॉफिटेबिलिटी.
So in the year 2019-20, my turnover went up by 42.44%, profitability rose by 215%, and the asset production was down by 0.85, was only 0.85% increase. जैसे ही कोरोना आया, अप्रैल मई जून 3 महीने मेरी प्लांट बंद हुई 2020-21 में, मेरा टर्नओवर 20% घट गया, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी उस 214 के ऊपर 44.41% हुआ और मेरा एसेट प्रोडक्शन भी 25% कम था क्योंकि 3 महीने मेरा प्लांट बंद था. आई हैव अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दीज आर द ट्रू फिगर्स. और मैं पूरे टाइम हॉलिडे कर रहा था. आगे चलिए. Lastly, I would like to leave you with my best practices which have helped me. Again, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं. रामपुर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड. अभी आप आंसर मत करो, आप कैरी ऑन करो, टू फिनिश नाउ. Anything that Rahul sir says is the gospel truth, so I did not question anything. I have followed scheduling, 4 a.m. out of office, EA and EM, and have missed only 4 EMs in the last 4 years, except for the 3-month period जब प्लांट ही बंद थी तो उस वक्त हमने कोई EM नहीं किया था. मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कोर्सेज किए हैं, which is 95% of the game changer. ये कोर्स बिजनेस का भागवत गीता है इस देश के लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा रहा है वो स्टाफ इंटीग्रेशन रहा है. जाने से पहले सर एक बार हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहते हैं जो हमारे स्टाफ ने प्रिपेयर किया है आप सब लोगों के लिए. विथ योर परमिशन सर. ठीक है जी, दिखाइए. दिखाओ यार. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है. जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है. जिंदगी है सफर और बसेरा भी है. जिंदगी है सफर और बसेरा भी है. जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है. हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है. गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे. गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे. अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे. आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने. वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी.
Very nice. Guys, come in here. Are you? So, sir, we'd just like to take, Sachin, Yes, sir. just like to take a bow in front of everybody and say thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ji. Thank you. Thank you so much. Really you. nice. Really nice. Thanks a lot, guys. Thanks a Thank lot. you, Thank Ji. you, sir. Thank you.